Welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. In today's video, we have something new. I have read a book, Think and Grow Rich, and I find that book really interesting. And it's a very famous, it's a timeless book that everyone loves to read, and everyone has found such amazing messages and help from this book. So, I have taken out 10 most important lessons or tips from this book so that none of you has to read it. So, without wasting any time, let's just read that whatever I have in whatever I have for you, whatever I've planned for you. Let me just share my screen. And before starting, I just want to say that if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to it. You'll find many amazing content on English, on how to learn English, how to speak in English, how to understand English, grammar, and a lot. So let's start. So Think and Grow Rich is a book by Napoleon Hill. This is how the book looks like. I think it's a very beautiful book. It talks about a lot of things. It talks about your mental paradigm, how your mind works, and how it should, how you can control it, and a lot of things. And I think all of us can master it if one can. If one can, then all of us can. So let's get started with the first lesson. The first lesson that I found really helpful was have a burning desire with definiteness of purpose. What does this mean? This means that have a burning desire with definiteness. Burning desire means a kind of desire which eats you, which makes you want to work more and more towards that thing, towards your dream, whatever your desire is. With a definiteness, definiteness means that it is there. It's definite. It has to have of purpose, and it should also have a purpose. Whatever you are doing, it should have a purpose. Only then you'll be able to do it. Otherwise, you won't be able to do it if you do not have a purpose to do it. When we rely on the power of the human mind, we see results. So जब हम अपने माइंड पे रिलाई करते हैं, जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, जब हम अपने माइंड को समझा लेते हैं, हम सिर्फ तभी रिजल्ट्स देख पाते हैं. We cannot be all negative and see positive results. Whatever our mind is in that point of time, whatever state the mind is, that kind of results we can see. You need to know your goals and want them with an intense desire that is unmoved by any obstacles in your path. So the first step is to know what you want, is to know what your goals are. And you should have them with an intense desire, a burning desire कि यही है जो चाहिए. That is unmoved. कि कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई भी हर्डल आ जाए, वो उससे मूव नहीं होगा. वो जो डिजायर है, वो जो मेरा गोल है, वो रहेगा ही रहेगा. इतना स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, और ये तभी आता है जब कुछ पर्पस हो. सेकेंड, faith is a state of mind that believes in something when there is no outer proof to back one's beliefs. So, what does this line say? This line is a very intense line. This line says that felt of faith is just a state of mind. You cannot see faith, you cannot feel faith. It's just a state of mind. If I have faith in it, ye hoga. It's just a state of mind that believes in something, even when there is no outer proof to back one's belief. कि physical reality में क्या चल रहा है, क्या सारी चीजें चाहे गलत भी हो रही, उससे भी हमारा faith वेवर नहीं करना चाहिए. That is what it's trying to say. कि बाहर की reality में कुछ भी चल रहा है, but मुझे faith है कि मुझे ये करना है, तो मैं ये करूँगी और ये होगा. You may have failed multiple times, but if you lose faith in yourself based on past experiences, that's when you really. Just because something is not working out, just because you're not seeing the exact results, but इतने से results तो दिख रहे होंगे ना, तो क्या इतने से results देखकर आप खुद को failure बोल दोगे? तो ये failure की आपकी definition है. But failure की true definition is कि when you lose faith in yourself, कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए है ही नहीं. That is when you just lose faith in yourself based on past experiences कि पहले भी कभी नहीं हुआ, तो अब मैं क्या ही कर लूंगा. So that is when you really fail in life. Failure is not the end of the road. Just because एक काम नहीं हुआ, that doesn't mean that it's the end of the road, it's end of the life. It's not.
It's lack of faith. Lack of faith is the end of the road. Lack of faith is the end of the line. Don't let your fears overcome your faith in your vision. Just because आपको डर लगता है कि कोई चीज होगी या नहीं होगी या कैसे होगी, वो फियर्स को आपको अपने फेथ से आगे नहीं जाने देना. आपके फियर्स आपके फेथ से बड़े नहीं होने चाहिए. आपका फेथ सबसे बड़ा होना चाहिए. You can develop faith at will and by reminding yourself why on a daily basis, lest you forget. You can develop faith. अब faith नहीं है तो क्या करना है? faith को develop करना है. और faith कैसे develop होगा? By reminding yourself. जो हमारे majority thoughts होते हैं ना, जो हमारे brain के 70 to 80% thoughts होते हैं, वैसी हमारी physical reality. अगर हमारे ब्रेन के 70 to 80% थॉट्स नेगेटिव होंगे ना, तो हमें सामने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी. तो अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स होंगे कि होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, तो हमारी पॉजिटिव रियलिटी ही बनती है. तो हम फेथ कैसे बना सकते हैं? हम फेथ बना सकते हैं बाय रिमाइंडिंग आवरसेल्फ ऑन डेली बेसिस कि यही है, यही करना है और ये होगा. और अगर हम ये रिमाइंडर्स खुद को नहीं देंगे तो हम भूल जाएंगे. लेसन नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज. नाउ व्हाट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज? कि एक चीज को पकड़ो, एक चीज को पकड़ो और उसकी हर चीज के बारे में इतनी नॉलेज ले लो कि आपसे ज्यादा उस चीज के बारे में किसी को नहीं पता. अब स्पेशलाइज हो जाओ उस चीज में. ठीक है. तो एक होती है स्पेशलाइज नॉलेज और एक होती है हर चीज के बारे में थोड़ी 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 नॉलेज. वो जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है ना, वो बहुत हार्मफुल होती है. तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेन थोड़ी थोड़ी नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, स्पेशलाइज इन वन थिंग. एक चीज की इतनी नॉलेज ले लो, एक चीज में इतना स्पेशलाइज कर लो कि उस चीज में आपसे आगे कोई हो ही ना पाए, तो आप तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट हो गए. सो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्वायर नॉलेज that gives you an added advantage and confidence in yourself. Added advantage as in कि आपको इतना पता होगा कि वो किसी को नहीं पता होगा, तो वो काम तो आपके एडवांटेज में ही करेगा ना. और आपको कॉन्फिडेंस भी होगा जब आपको पता है कि जो आपको पता है वो तो किसी को नहीं पता. Instead of knowing a little bit of everything, try to acquire specialized knowledge in one area where your skills and passion align. तो जहां पर आपको लगता है आप काम कर सकते हो, आपके स्किल्स हैं, जो भी उस चीज के लिए स्किल्स चाहिए, और आपने उस चीज का पैशन, तो उस चीज को पकड़ो और उस चीज में इतना घुस जाओ कि उससे पहले कोई और ना घुस. So this was a very, very important lesson that I found. And if you're enjoying this video, please give this video a like and please subscribe. So lesson number 4, use the power of imagination to build new realities. Now our imagination have a lot of power and we know that. So हमें हमारी imagination use करना चाहिए, हमें हमारी thinking abilities को use करना चाहिए जिससे हम नई realities बनाए. Do not sulk in the present reality. Change करना है तो change करो. और सबसे पहले चेंज कैसे स्टार्ट होता है? थॉट से. थॉट आता है तब प्लान बनता है, फिर एक्शन लिया जाता है. पहला स्टेप क्या हुआ? थॉट. तो अपनी इमेजिनेशन में वो थॉट लाओ. इमेजिनेशन कैन डेफिनेटली टेक यू प्लेसेस if you learn to apply your ideas and turn them into things by working on them. So that's what I was talking about. Imagination can definitely take you places. तो आपकी reality change कर सकती है. कैसे? If you learn to apply your ideas, knowledge से. अपने आपको आइडिया आया, अब आप प्लान करोगे और उसके बाद अब उस पर एक्शन लोगे, फिर वो चीजें आपकी रियलिटी बन जाएगी. Take inspired action and never stop imagining all the wonderful things we can create in our minds first and give to the world later. कभी भी इमेजिनेशन करना मत छोड़ो. हम इमेजिनेशन से वंडरफुल वंडरफुल चीज बना सकते हैं. सबसे पहले हमारे माइंड्स में, सबसे पहले हमारे थॉट्स में, और उसके बाद हम उसको मटीरियलाइज कर सकते हैं अपनी फिजिकल रियलिटीज में, फिजिकल वर्ल्ड. When you start taking actions, things will move forward quickly. तो जब इमेजिनेशन भी करा है, इमेजिनेशन करते रहे करते रहे करते रहे और फिर अब एक्शन भी लिया, तो इतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट होगी कि वो मैजिकल होगा. Lesson number 5, temporary defeat indicates there is something wrong with your plan. अगर टेम्पररी डिफीट्स है कि छोटी छोटी डिफीट्स आ रही है आपके पाथ में, तो इट डजंट मीन कि आपका पाथ गलत है या आपका गोल गलत है. इट जस्ट मीन्स कि आपके प्लान में कहीं कहीं कुछ फॉल्ट्स हैं, कहीं कहीं अभी परफेक्शन नहीं.
कई कई चीजों पे आप और अच्छे से काम कर सकते हो, थोड़ा और टाइम दे। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, एनालाइज योर प्लान्स अगेन एंड फाइंड आउट व्हाट्स ब्लॉकिंग योर सक्सेस। तो छोटे छोटे डिफीट से घर बैठने से बेटर है कि अपने प्लान को फिर से रिव्यू करो और देखो कि कहाँ गलती है या कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या क्या गलत कर रहा हूँ जिससे ऐसे गलत हो रहा है। उन चीजों पे इंट्रोस्पेक्ट करो, उन चीजों पे कॉन्टेम्पलेट करो और चीजें इम्प्रूव करो। इफ योर प्लान्स आर साउंड, द रिजल्ट्स विल टेक यू बाय सरप्राइज एंड यू विल ओनली डू मोर। अगर आपके प्लान्स बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपका इंस्पायर्ड एक्शन आपके प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है, तो जो रिजल्ट्स होंगे ना, वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होंगे, वो बहुत ज्यादा क्विक होंगे और वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होंगे। और जब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और जब हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम बस और करना चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते। लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 6 says overcome procrastination and never delay your actions because of excuses such as the situation not being ideal. So what is procrastination first? Procrastination means कि अभी नहीं करना, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी ये अभी वो। तो किसी भी चीज को डिले करते रहना। तो हमें सबसे पहले तो ये प्रोक्रास्टिनेशन वाला एटीट्यूड को ओवरकम करना है, इसको छोड़ना है। और हमें अपने, हम जो एक्शंस लेते हैं ना, हमें वो कॉन्स्टेंटली लेने हैं। और हम उनको डिले नहीं कर सकते किसी भी एक्सक्यूज की वजह से। या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि अभी सिचुएशन आइडियल नहीं है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि अभी तो ये छुट्टी चल रही है तो सब मजे कर रहे हैं तो चलो मैं भी मजे कर लेता हूँ, या कोई भी कि मैं ये काम तब करूंगा जब ये हो जाएगा। तो ये सब क्या एक्सक्यूजेस है, आप अपने एक्शंस को डिले करो, आप अपने एक्शंस को डिले करो मतलब आप अपने रिजल्ट्स को डिले करो, इस बात को ध्यान रखना। इफ यू वेट फॉर एन आइडियल टाइम, you'll keep on waiting and the ideal time will never arrive. What is ideal time? क्या हो सकता है ideal time? I think time, all time is ideal. जहां आप स्टार्ट करना चाहो आप वो वहां स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप वेट करते रहोगे ना आइडियल टाइम का, आइडियल टाइम का, आइडियल टाइम का, तो वो आइडियल टाइम कभी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आइडियल टाइम क्या है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं आइडियल टाइम क्या है, तो वो आएगा कैसे। स्टिक टू योर डिसीजंस एंड सी थ्रू योर प्लान्स। बस एक काम करना है, जो डिसाइड कर लिया वो करना ही करना है, और अपने प्लान्स को अच्छे से बनाना है और अच्छे से एग्जीक्यूट करना। लेसन नंबर 7, विल पावर एंड द एफर्ट यू पुट इन टू सी रिजल्ट्स विल ब्रिंग यू सक्सेस। आपके पास विल पावर होना चाहिए, आपके खुद पे फेथ होना चाहिए, आपको स्ट्रांग रहना और आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं, तभी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। रिमेन परसिस्टेंट, करते रहो उस काम को एंड कीप वर्किंग ऑन योर प्लान। अपने प्लान्स को और जितना इम्प्रूव कर सकते हो उतना करते रहो। यू हैव द डिजायर एंड बाय एडिंग विल पावर टू द मिक्स यू बिकम अ पावरफुल बीइंग विद अ डेफिनेट गोल। आपके पास एक डिजायर है, आपके पास कुछ चीज चाहने की चाह है, साथ में आपके पास विल पावर है कि आप स्ट्रांग हो, कि आप उस चीज की तरफ काम करना चाहते हो, आप काम कर सकते हो। ये एक बहुत पावरफुल बीइंग बना सकता है आपको। Even if you feel you have faced multiple defeats, you'll arrive at the top someday if you remain persistent with your action. अगर persistently actions लिए, अगर constant actions लिए, रोज काम करा, तो चाहे पहले की लाइफ में जितने भी डिफीट्स आए, अब डिफीट नहीं आएगा, अब सिर्फ आप टॉप पे जाओ। नेक्स्ट लेसन नंबर 8, train your subconscious mind through affirmations and auto suggestion. What is affirmation? They are positive sentences that you tell yourself, positive words that you tell yourself that motivates you or forces you to think positive and everything. Most of what we do and our actions depend on our subconscious behavior and patterns. तो जो भी हम करते हैं और जो भी हम एक्शंस लेते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ही डिपेंड करते हैं। Those who grew up seeing difficult times are programmed to believe that things can never be good, and that is why they continue to remain in this way. अगर कोई बच्चा है जिसकी लाइफ में स्टार्टिंग से सब कुछ चीजें गलत 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 हो रखी हैं, तो उसके लिए वो पॉजिटिव माइंड लाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो रहा ही नेगेटिव में। तो उसका जो डोमिनेंट ब्रेन है वो नेगेटिव है, तो उसके साथ चीजें नेगेटिव ही होंगी। बट उसको ये चीज रियलाइज हो रही है और अब वो उस चीज पे काम कर सकता है। वो कैसे काम कर सकता है? फेथ डेवलप करता है। वो कैसे काम कर सकते हैं? एफर्मेशंस को यूज कर एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होती है, और उसको यूज कर वो अपनी इस साइकिल को, जो इनएविटेबल साइकिल उसको लगती थी, वो साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। योर सबकॉन्शियस माइंड कैन बी ट्रेन्ड
and new images can be provided through creative visualization techniques. सिर्फ सोचना ही एक अपनी न्यू रियलिटी, जो रियलिटी हमें चाहिए, उसको हम विजुअलाइज कर कर भी अपने उस थॉट प्रोसेस को, अपने उस साइकिल को चेंज कर सकते हैं। लेसन नंबर 9, trust your sixth sense and follow those gut feelings that guide your decisions and tell you when it's the right time to do something. So, Steve Jobs also said the same thing. To trust your sixth sense, to trust your intuition, to trust your inner voice, to follow those gut feelings. वो जो हमारी गट फीलिंग है, जो हमारा इंट्यूशन है, वो सही है, वो हमारे लिए सही है। लोग क्या बोलते हैं should not matter, and our intuition tells us when it's the right time. कुछ ideal time नहीं होता, हमारे लिए जो right time है वही right time है। Learn the difference between fears and inner voice. Yep, अब इनर वॉइस को ये भी बोल सकते हैं ना कि मेरे को तो लग रहा है ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब ये जो नहीं होगा वाली वॉइस है ना, ये वॉइस है डर की, ये इनर वॉइस नहीं है, ये वॉइस है डर की। Fears will stop you from taking inspired action, but a well-trained mind will allow you to keep developing a good sixth sense. Fears होंगे, डर सबकी लाइफ में होते हैं, वो रोकेंगे आपको आपका काम करने से। बट एक जो वेल ट्रेन माइंड होगा ना, जिसने एफर्मेशंस करी, जो विजुअलाइजेशन करता है, जो जिसमें फेथ है, जिसमें विल पावर है, वो वाला माइंड उसको अलाउ करेगा अपना गुड सिक्स्थ सेंस बनाने के लिए, गुड इंट्यूशन बनाने के लिए, और उसको समझाएगा कि ये जो वॉइस है ये डर की है और ये जो वॉइस है ये रियलिटी है। लेसन नंबर 10, overcome all negative emotions of anger, hatred, jealousy, fear, greed, superstitions, etc. अब ये सारे नेगेटिव इमोशंस को हटाने की जरूरत क्यों है, ओवरकम करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हमारा भाई नेगेटिव होगा तो हमारे साथ नेगेटिव चीज है। अब ये नेगेटिव फीलिंग्स को हटाना है ताकि पॉजिटिव फीलिंग्स आ सके, ताकि पॉजिटिव चीजें हो सके। When you're constantly thinking negative thoughts about yourself or others, it's difficult to focus on your goals, ड्रीम्स एंड लाइफ पर्पस। आप इन नेगेटिव चीजों में ही ऑक्यूपाई रह जाओगे, आप इस नेगेटिव चीजों में ही घूमते रह जाओगे, आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप अपने गोल्स की तरफ, आप अपने काम की तरफ फोकस कर सको या अपनी लाइफ बनाने की तरफ फोकस कर सको। तो गेट रिड ऑफ दीज इमोशंस एज सून एज। So these were 10 lessons that I found very, very helpful from the book Think and Grow Rich. I hope these lessons must have helped you, or you must have learned something new from these lessons. And if you did, please give this video a like, share with your friends and family, and please do subscribe to my channel. It would mean a lot to me and it would actually motivate you to keep doing this every day. Thank you.